Assalamualaikum class, hope you're all fine and safe. In the previous lectures, we talked about the different type of the personality. So in today's interactive session, I'm going to have a quick recap of what we have studied in the previous lectures. We started with the psychodynamic perspective of the personality that there are the certain unconscious desires and unconscious drives in the motive state determine your personality. And in the very recent lecture, we talked about the trait theory that there are the certain traits that actually determine your personality rather than your unconscious desires. These traits are consistent in a sense that you can observe these traits, and these are the persistent, or you can say relatively permanent in your life. Or you can say that these traits are more about the conscious mind of your personality rather than the unconscious mind, unconscious desires as compared to the psychodynamic perspective. Then we talked about the two major type of the trait theories. That first one was the Golden Albert theory, and the other one was the Big Five personality traits. According to the Golden Albert theory, every person has the different personality traits, and he actually grouped these thousands or hundreds of personality traits into the three major categories. First category was the cardinal trait. That according to the Golden Albert, the cardinal traits, or you can say they are the single trait that when your single trait encapsulate or surround you or dominate in your own in your complete personality. This is what he called cardinal trait. That is a single dominant trait in your life, and it is a very persuasive and the most powerful trait that actually become the synonym become you can say that you are actually recognized by that particular trait. Let's take the example of the Hitler. Hitler, obviously, Hitler might be Hitler have this Yeah. so Hitler might have so many traits, but we remember him on the basis of his single trait, that is the power hungry, or you can say need for power. So this is what we call cardinal trait. That मैम जी एक्सक्यूज जी मी मैम। मैम आपकी मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अब आ रही है नजर? यस मैम अब आ रही। Okay. We were यस talking मैम। about the cardinal trait, that they're the single trait that actually completely encapsulate your complete personality. Then comes the central traits. Central traits are actually the combination of the different type of the traits. These are not a one trait, two trait. It is you can say it is actually the combination of 6 to 12 traits that actually represent your personality. Let's suppose if you say someone is very talkative, it's mean that he is very social, he is very talkative, he is very extrovert. So we actually make the extroversion liveliness liveliness, or you can say we just grouped the different and different similar type of the traits into the one category, that is the talkative. So the set traits are actually the combination of the different traits, and these are actually the main part of your personality. Then comes the secondary trait. This is more specific trait, and we call them as the attitude and the preferences. These are very specific to the certain situations. These are the type of the, you can say, the traits that we not usually exhibit in every situation. There are the certain situations in which we exhibit. And it includes our preferences. For example, our preference to food, our preference to music, our preferences about you can say lifestyle. These are actually the secondary traits. Clear? So Golden Albert talked about the three type of the traits. That first one is the cardinal trait, that is your single trait dominates your complete personality. Then comes the central trait, in which there's a combination of the 6 to 12 traits, and then comes the secondary trait, which belongs to your attitude and the preferences. So if I conclude the Golden Albert theory, he said that these traits are, you can say, are common to everyone, but sometimes some exhibit in a more frequent way rather than the other one. So the traits which are you can say unique to the individuals are called the individual traits, or the traits that are very common in the general public are called the general traits. Then comes the big five personality trait. This is the very important personality theory that actually used in the management organizational behavior. Even the current corporate organizations use this type of the test when they are hiring someone. So this is very important test that is called the Big Five personality test. It consists of actually, or it is called as an ocean model. Why it calls the ocean model? That OCEN actually the acronym of
the 5 different traits. O stands for openness, C stands for consciousness, E stands for extroversion, A stands for agreeableness, and N stands for neuroticism, which is also called as emotional stability. So, coming toward the one by one, each step, that is the openness. Openness is actually that your tendency to have certain experiences, or you can say it is your tendency to open to the different experiences, that you are very open toward the new experiences, new adventures. You are actually curious about the world and you want to know about the world. So this type of the personality is usually eager to learn new things and they enjoy the new experience. They are more, you can say, they are more imaginative as compared to the other type of the personality. So when we talked about the openness, there are the two extremes. First one is variety. Okay, in the big five personalities, we actually score ourselves, or the you can say the personality is scored from 1 to 100. The above 50 actually makes you low on openness, and below 50 actually make you less in openness, and the above 50 score actually make you more open. So there are the two extreme: low openness and the high openness. The people who are high in this trait, they are tends to be more adventurous and they tends to be more creative. So the people in this trait are much of a less, you can say, might be they are very traditional and they are very they are not very imaginative as compared to the high people, high openness people. Then comes to the consciousness. Obviously, that is the you can say it includes the high level of thoughtfulness, good impulse control, good directive behavior. That you are very organized, you are very responsible, you are very careful. This is sort of, we can say, the consciousness is actually you can say synonym with the zamir. That you are very much organized, you have very responsible person, you are accountable of your own actions. People who are high in the consciousness actually are more organized. They pay attention to the detail. They are a very scheduled person, or they are very they want to keep things in an order. The people on the other case, the people who are the low score, who score low on the consciousness, are usually structures. They are their personalities like go with the flow. They dislike schedules. They make they actually procrastinate the important things. So these are the very disorganized person, careless person, or these are the very impulsive persons. Then comes the extroversion. Obviously, when we talked about the extroversion, these are the characterized by the you can say openness, susceptibility, social. The persons are very social. They are very talkative. They are very stranger friendly or people friendly people. On the other extreme, there is there are the introverts. The introverts are actually the more reserved and have less energy to expend in the social setting. So they are not comfortable in the strangers' company, or you can say in the people's company. They want to live alone. They prefer to live alone as compared to the extroversion who prefer to live in a company. Then comes the agreeable person. Obviously, when we talked about the agreeable person, it includes such as dimensions that you are very, if you are score high in the agreeableness, you are very kind, helpful, trusting, soft-hearted people. They actually avoid conflict. Agreeable, that they agree to each and every situation and they want to avoid conflict. So avoiding conflict, they usually sometimes you can say they sometimes feel more empathetic toward others. They enjoy contributing, or they enjoy helping others. On the other hand, the person who are low in the agreeableness, they are very have a little interest in others. They don't care about others, you can say. And you can also say that they actually love to manipulate others, sort of. So they are very ruthless, uncooperative, rude, and the suspicious people. Then comes the मैम मेरा neuroticism. क्वेश्चन है, जी। मैम ये ट्रेड एक ट्रेड का दूसरे को डोमिनेट करना जरूरी है, मतलब ये एक साथ नहीं हो सकती कि एक ट्रेड भी है दूसरा भी साथ है? नहीं नहीं, अब देखो, अगर हम बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करें ना, तो जिसमें ओपननेस है, ये सारे ट्रेट्स आप में एग्जिस्ट करते हैं। ये सब होते हैं, इनकी डिग्रीज फर्क हो सकती है। आप ओपननेस हो सकता है कि आप हाई ओपननेस है आप में, लेकिन आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो इतनी अच्छी ना हो। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक ट्रेट है तो बाकी ट्रेट नहीं होगा। हम ये बात करें एक ट्रेट की दो एक्सट्रीम्स है। लेट्स सपोज अगर मैंने बात की एग्रीएबलनेस की, तो मैंने कहा कि कुछ लोग बहुत एग्रीएबल होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल एग्रीएबल नहीं होते। जो एग्रीएबल होते हैं वो लोग होते हैं जो लोगों की केयर करते हैं, जो लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, और उनको आप कह लो कि बहुत काइंड होते हैं, ट्रस्टिंग होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। लेकिन वो लोग जो एग्रीएबल नहीं होते, वो अनकोऑपरेटिव हो सकते हैं, वो रूड हो सकते हैं, वो लोगों को मैनिपुलेट करना पसंद कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पांचों चीजें आप में या मुझ में है, लेकिन उनकी डोमिनेंसी, उनकी डिग्री डिफरेंट है।
क्लियर? ओके मैम, क्लियर। ठीक है, आप एग्री, हो सकता है आप भी एग्रीएबल हो, मैं भी एग्रीएबल हूँ, लेकिन हो सकता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, आप एक्सट्रोवर्ट हो। वो डिपेंड करता है हमारी पर्सनालिटीज पे, हमारे कौन से ट्रेड्स हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि ये पांचों एक साथ नहीं एग्जिस्ट करेंगे। दीज आर द 5 कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स जो एक टाइम पे हर किसी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो लेवल ऑफ एक्सटेंट है या उनकी जो लेवल ऑफ डिग्री है वो डिफरेंट होगा। क्लियर? जी मैम। The next one is a neuroticism, which is actually referred as the emotional stability. If you are emotionally stable, you will be very calm, secure, or very self-satisfied. But if you are less emotionally, you can say you are emotional unstable. So then you will experience a lot of stress. You will worry about the many different things. You can say you can get upset easily. आप हर चीज को क्या करोगे, अपने सर पे सवार कर लोगे, हर चीज में टेंशन टेंशन लोगे। लेकिन अगर आप इमोशनली स्टेबल होगे तो आप क्या करोगे, आप स्ट्रेस को बहुत इजीली हैंडल कर सकोगे। यू आर वेरी रिलैक्स्ड, काम, और आप चीजों को इतना ज्यादा अपने, वो कहते हैं ना, सर पे सवार नहीं करोगे। काम जरूर करोगे, यू विल बी परफॉर्मिंग, बट आप चीजों को अपने सर पे सवार नहीं करोगे। क्लियर? और फिर एक अगर हम लोग बात करें कि जो बिग 5 पर्सनालिटीज, अभी आपने जो क्वेश्चन किया था कि बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो अगर हम ये डिस्कशन करें कि आपकी जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ये यूनिवर्सल है ये नहीं है। दीज आर द सॉर्ट ऑफ द यूनिवर्सल, हर किसी में कहीं ना किसी हद तक पाए जाते हैं। इवन द रिसर्च शोज दैट the research that 50 different cultures actually shows that the big 5 personality traits actually used to describe a certain sort of personality. इसीलिए many organizations are using this type of the test to measure the personality of their employees. आपने बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी होंगी, जब आप जितनी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आप उनमें जाएं तो सबसे पहले वो जो आपसे डिफरेंट क्वालिफिकेशन टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट करने के बाद वो आपसे आपके पर्सनालिटी टेस्ट भी करवाते हैं। तो इन पर्सनालिटी टेस्ट का एक्चुअली पर्पस ही यही होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, कि आप लोगों ने अपने टेस्ट को, आप लोगों ने अपनी पर्सनालिटी को मेजर करना है। मैंने आप लोगों को छोटी सी असाइनमेंट दी थी, मैंने जिसमें ये कहा था कि आप लोगों ने क्या परफॉर्म करना है, आप लोगों ने ये टेस्ट परफॉर्म करना है ऑनलाइन। देयर इज अ लिंक, मैं आपसे लिंक शेयर कर देती हूँ और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। दिस इज द टेस्ट बेस्ड ऑन द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 डिसिप्लिन्स है, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ये हर क्वेश्चन आपके एक स्पेसिफिक ट्रेट्स के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जैसे जैसे आप इसको क्वेश्चन को आस्क करेंगे, इट मे बी 50 क्वेश्चंस, और एट द एंड वो आपको क्या होगा, वो आपको एक स्कोर प्रोवाइड कर देगा। वो स्कोर जो है वो एक्चुअली में शो करेगा कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज ये मेरे पास आ रहा है कि आई हैव अ काइंड वर्ड फॉर एवरीवन, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड, आई फील कंफर्टेबल अराउंड पीपल। अभी देखो जैसे उससे पूछा गया आई फील कंफर्टेबल अराउंड पीपल, इसमें वो यही चेक करना चाह रहा है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट है। आई ऑफन फील ब्लू, आई बिलीव इन द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट, इसका मतलब है कि आप कितने ज्यादा कॉन्शियस है, कितने इमेजिनेटिव और कितने ज्यादा ओपननेस है। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन है, जब आप क्वेश्चन फिलअप करेंगे तो एट द एंड वो आपको आपके टोटल स्कोर बताएगा और आपको आपकी पर्सनैलिटी टाइप भी बताएगा। तो ये आप लोग की नेक्स्ट असाइनमेंट है कि आप लोगों ने जो है ये टेस्ट कंडक्ट करना है, शेयर दिस वेबसाइट इन अ गूगल क्लासरूम, और फिर उसके बाद आप लोगों ने जो अपने रिजल्ट्स हैं वो मेरे साथ क्या करने हैं, शेयर करने हैं। क्लियर? क्लास एनी क्वेश्चंस? मैम लिंक इसका शेयर करते हैं बस। ओके, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द साइकोडायनामिक थ्योरी एंड द ट्रेड थ्योरी, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? मैम मेजर डिफरेंस इन दोनों का तो बेसिकली यही है कि वो एक चीज पे फोकस कर रही है, ये ट्रेड थ्योरी एक चीज पे फोकस नहीं कर रही। वो साइकोडायनामिक मैम डिजायर्स को फोकस करती है, मैम ये ट्रेड थ्योरी डिजायर को फोकस नहीं कर रही। तो ये किसको फोकस कर रही है? मैम ये पर्सनालिटी अपने को। इंडिविजुअल ट्रेट को कर रही है फॉलो। वन बाय वन प्लीज जी। मैम ये अपने ना इंडिविजुअल जो ट्रेट्स हैं ये उनको फॉलो कर रही है, ये एक ही चीज को फोकस नहीं कर रही। ओके, कुछ और, कोई और भी कुछ कह रहे थे? मैम साइकोडायनामिक में अनकॉन्शियसनेस होता है और इसमें इसने कॉन्शियसनेस पे फोकस किया हुआ है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, वेरी प्रिसाइज, आप दोनों ने बिल्कुल ठीक बात की कि जब हम लोग बात करते हैं साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में, तो उसने जो मेजर डिस्कशन की हुई है उसने सारी अनकॉन्शियस पे की हुई है कि देयर आर द सर्टेन अनकॉन्शियस डिजायर्स, दीस आर द सर्टेन अनकॉन्शियस मोटिव्स दैट एक्चुअली that actually shape up your personality, but in case of trait theories these are the certain traits। अच्छा, आपको लगता है नेचर और नर्चर के में अगर हम बात करें तो ट्रेट थ्योरी किसको प्रेफर करती है, नेचर को, नर्चर को, और साइकोडायनामिक किसको करती है, नेचर को या नर्चर को?
मैम ट्रेड थ्योरी बंदे की नेचर के बारे में बता रही है कि बंदे की नेचर कैसी है। मैम साइकोडायनामिक नर्चर पे बात कर, साइकोडायनामिक मेरे ख्याल से मैम दोनों पे बात कर रही है। अच्छा, और मैम एनीवन एल्स बेटा? और डिफरेंस मैम यही है, और कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता। और किसी और का, कोई और? ओके आपने बहुत प्रिसाइज बात की कि अगर हम ट्रेड थ्योरी की बात करें तो ट्रेड थ्योरी एक्चुअली नेचर पे बेस करती है, ठीक है। लेकिन ट्रेड थ्योरी कहीं ना कहीं नर्चर पे भी बात करते हैं। लेट्स सपोज यू आर वेरी ओपन टू एक्सपीरियंसेस, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंसेस अपॉर्चुनिटीज में नहीं मिलते, ये इवन यू आर वेरी इंट्रोवर्ट और आपको आहिस्ता आहिस्ता ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसमें आपको क्या मिले कि आपकी जॉब फील्ड है, लेट्स सपोज आप जो है आपका पब्लिक रिलेशन की जॉब है, या आपको कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे आपने लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना, तो हो सकता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इंट्रोवर्ट से ग्रेजुअली चेंज हो जाए टू दी एक्सट्रोवर्ट। लेकिन अगर आप बात करते हैं साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव की, तो वो टोटली आपके नेचर पे बेस करते हैं, क्योंकि वो कहती है दीज आर द रिप्रेस्ड थॉट्स इन योर अनकॉन्शियसनेस। तो जब आप अनकॉन्शियसनेस की बात करें, वो तो सारा नर्चर है, सॉरी वो तो सारा नेचर है। वो उसने पहले ही कह दिया कि दीज आर द थिंग्स दैट वी कांट कंट्रोल, दीज आर द डिजायर्स, दीज आर द मोटिव्स दैट वी कांट कंट्रोल। लेकिन जब आप ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें भी हम ये बात करते हैं दीज आर द सर्टेन टाइप ऑफ द ट्रेड्स। और ये ट्रेड्स क्या है? ये ट्रेड्स भी हमारे बेल्ट इन है, क्योंकि हमने कहा था दीज आर द ट्रेड्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर कंसिस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? तो अगर आप दोनों की बात करें तो दोनों जो है वो किस पे बात करें? नेचर पे बात करें। ये इनमें सिमिलैरिटी है। डिसएग्रीमेंट क्या है? डिसएग्रीमेंट ये है कि वो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की सॉरी सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस की बात करती है साइकोडायनामिक थ्योरी, और जो आपकी है ट्रेड थ्योरी वो एक्चुअली में कॉन्शियस बिहेवियर्स की बात कर रही होती है। तो अगर आप ट्रेड थ्योरी की बात करें तो ट्रेड थ्योरी का जो प्रॉपर एक आइडिया है वो ये कहते हैं कि दीज आर द सर्टेन type of, you can say, but traits say that determine the way people think and act. So these traits vary from one person to the person. बट अगर आप साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वो हमेशा इनर ड्राइव्स की बात कर रहा है, वो अपनी कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। वो कहते हैं कि भाई दीज आर द सर्टेन unconscious desires or your unconscious experiences, your childhood traumas that are actually stored in our unconsciousness, और वही unconsciousness जो है वो आपकी लाइफ को क्या कर रहे होते हैं? शेप अप कर रहे होते हैं। क्लियर? जी मैम क्लियर जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्डन अल्फा थ्योरी एंड बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट, तो उसमें आपको क्या मेजर डिफरेंस नजर आया? अगर हम डिफरेंस करें, द डिफरेंस बिटवीन गोल्डन अल्फा थ्योरी दैट इज द cardinal trait, central trait, and the secondary trait, and big five personality trait. What is the major difference and what is the major similarity? जी class, I am listening. मैम कार्डिनल ट्रेट और मैम दूसरे जो 5 ट्रेट्स हैं इनका डिफरेंस तो पता है मैम, ये जो तीसरी चीज है इसका आइडिया नहीं है मैम। वो सबके ये जो इनमें सिमिलैरिटी पता है, डिफरेंस का आइडिया नहीं। सिमिलैरिटी ये है कि ये सब में कॉमन है। गुड। डिफरेंस का मैम आइडिया नहीं अभी। ओके चलो, सबसे पहले तो सिमिलैरिटी हम ये बात कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेड थ्योरीज और बोथ टॉक्ड अबाउट दी ट्रेड्स, but in case of golden orbit we are the three combination of traits. One is the cardinal, central and the secondary trait. लेकिन अगर हम big five personality trait की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाते हैं? 5 traits। अच्छा, अब जो major difference है ना, that is actually based on the cardinal trait, क्योंकि according to the golden albert there are sometimes your one single trait represents your complete personality। तो वो जो सिंगल ट्रेट है वो क्या कहता है? वो कार्डिनल ट्रेट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट, बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट कहते हैं कि सारे के सारे ट्रेट्स आप में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप न्यूरोटिसिज्म की बात करें, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट की बात करें हैं, या आप बात करें एग्रीएबलनेस की, या फिर आप बात करें कॉन्शियसनेस की, तो वो कहते हैं कि पांचों के पांचों ट्रेट आप सब में एग्जिस्ट करते हैं और आपकी पर्सनालिटी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 ट्रेट्स। लेकिन गोल्डन ऑर्डर कहते हैं कि सम टाइम योर सिंगल
trait actually dominates your complete personality, that is called the cardinal trait. फिर आपने आपको बात की कि secondary traits. तो अगर हम secondary traits की बात करें तो secondary traits कहते हैं these are your preferences, these are your liking, affections or liking and disliking about a certain thing, these are your attitude. अगर आप एटीट्यूड की बात करें तो गोल्डन एल्बर्ट जो बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट है उसने एटीट्यूड्स की बात की इन द टर्म्स ऑफ द इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट. अगर आप कंपैरिजन करते हैं साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में, हमने यूज पर्सनालिटी थ्योरी में लास्ट में एक स्लाइड पढ़ी थी, दैट इज द एटीट्यूड. उसमें हमने ये बात की थी कि उसने कहा है नियो फ्लूइड, हमने जो पर्सनालिटी पढ़ी थी कि उसने कहा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ एटीट्यूड्स, वन इज द इंट्रोवर्ट एंड द अदर वन इज द एक्सट्रोवर्ट. वही बात उसने आगे बिग फाइव में की है. बात समझ में आ रही है? जी मैम आ रही है समझ. ठीक है, तो यही सारी बात हम बात करते हैं आप कि आपके पास क्या है कि दे आर द थ्री ट्रेट्स. फिर जब आप बात करते हैं ना सेंट्रल ट्रेट्स की, तो दीज आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट. और सेकेंडरी ट्रेट्स आपके पास क्या है? आपके पास आपकी प्रेफरेंसेस है. योर प्रेफरेंस फॉर म्यूजिक, योर प्रेफरेंस फॉर एनवायरमेंट, योर प्रेफरेंस फॉर स्टडी, योर प्रेफरेंस फॉर फूड, योर प्रेफरेंस फॉर रेस्टोरेंट, योर प्रेफरेंस फॉर पार्क, योर प्रेफरेंस इन अ कार, योर प्रेफरेंस इन अ मोटर बाइक. वो आपकी प्रेफरेंस है, वो प्रेफरेंस किसी भी चीज में हो सकती है. और हमने कहा था कि सेकेंडरी ट्रेट्स आर द सिचुएशन स्पेसिफिक. जब आपसे फूड की बात होगी, जब आपसे रेस्टोरेंट की बात होगी, तभी वो आप एग्जिबिट करोगे. आप हर वक्त ये नहीं कहते रहोगे कि भाई मुझे इस तरह का म्यूजिक पसंद है, मुझे इस तरह का फूड पसंद है. नो, दीज सेकेंडरी ट्रेट्स आर स्पेसिफिक टू द सिचुएशन. तो जब सिचुएशन आएगी तभी आप उनको क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे. क्लियर? यस मैम क्लियर. जी, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम जी जी. मैम ऐसा हो सकता है कि आप एक ही टाइम पे एक्सट्रोवर्ट भी हो और इंट्रोवर्ट भी हो? ऑब्वियसली हो सकता है. हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट. दैट इज द न्यू टर्म. मैं यहाँ चार्ट में लिख देती हूँ, व्हिच इज कॉल्ड एम्बीवर्ट. Ambivert. That is actually the combination of the extrovert और introversion. आपकी पर्सनालिटी हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट हो, किसी सिचुएशन में आप इंट्रोवर्ट हो. लेट्स सपोज यूर इन ग्रुप, आपकी अपनी क्लोज फैमिली है, वहां पे आप बहुत टॉकेटिव हो, वहां बहुत सोशल हो, वहां बहुत ज्यादा आप करें, आपकी प्रेफरेंस हो कि आप एनवायरमेंट जो है ना वो ज्यादा स्टिमुलेटिंग हो. लेकिन अगर आप स्ट्रेंजर्स में हैं या आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर है, तो हो सकता है आप इतने ज्यादा वो कह लो कि इतने ज्यादा एक्सट्रोवर्ट ना हो. तो हम एक वर्ड यूज करते हैं एम्बीवर्ट. दैट इज द मिड बिटवीन एक्सट्रोवर्ट एंड द इंट्रोवर्ट. अगर आप बात करते हैं ये सारी पांच की पांचों डायमेंशन की, ये पांचों की पांचों डायमेंशन जो है एक्चुअली में जरूरी नहीं है कि यहाँ आप लेस एग्रीएबल होंगे या आप हाई एग्रीएबल होंगे. यू माइट हैव स्कोर ऑफ 50. आपका अगर 50 का स्कोर आता है, कॉन्शियसनेस में भी आपका 50 का स्कोर है, एग्रीएबल में भी आपका 50 का स्कोर है, तो इसका मतलब यू हैव द वेरी बैलेंस्ड पर्सनालिटी. आप किसी भी एक्सट्रीम में फॉल नहीं करते, ना ही आप बहुत हाई एग्रीएबल में आते हैं, ना आप लो एग्रीएबल में. तो आपकी पर्सनालिटी बड़ी बैलेंस्ड है. आप कह सकते हैं कि आप एक टाइम पे इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं. मैम इसको ओमनीवर्ट नहीं कहते? एम्बीवर्ट भी कहते हैं, ओमनीवर्ट भी कहते हैं, जो मर्जी कह लो, लेकिन द न्यू वर्ड इज एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट इज अ न्यू वर्ड फॉर दी दैट इज द बिट बिटवीन द एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्ट. आप इसको ओमनीवर्ट भी कह सकते हैं. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम लिसनिंग. Class, any questions? Then I'm not able to listen you. No, ma'am, no question. Okay. Sapten, are you saying something? I'm not able to listen, beta. नहीं मैम, अभी किसी और ने कुछ नहीं कहा. अच्छा, वो सप्तेन का माइक ऑन है तो मुझे लगा शायद वो कुछ कहना चाह रहा है. नहीं. Okay. And then I'm going to wrap up today's lecture. कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा और हम क्या बात कर रहे थे. We started
with the definition of the trait. Have a quick recap. We started with the definition of the trait theory, or you can say with the traits are actually the characteristics way of behaving, such as you can say you might be extrovert, you might be introvert, or you may be fall in any point in that particular continuum. Then we talked about the golden Albert theory. The golden Albert theory actually organized the traits into the three levels. First one is the cardinal trait, second one is the central trait, and the third one is the secondary trait. Cardinal traits are, you can say, the cardinal traits are actually the traits that dominate and shape up your complete personality, your complete behavior. This is what we call the master control. Cardinal traits are the sort of the master control. Then comes the central traits. These are you can say these are the general characteristics that found in every person, but the degree of occurrence is different for every person. So you can say these are the actually the basic building block that shape up your personality. Then comes the secondary traits. These execute these are the you can say not obvious or not consistent as the central traits, but they are very powerful and they are very specific to the situation. And this include your attitude and your preferences about the certain things. So the secondary traits actually explain why a person may at times exhibit a behavior that seem inconsistent with their usual behavior. So then we talked about the big five personality trait. In a big five personality trait, we talked about the 5 different personalities. First one is the openness, that you are very open. You are very open toward the experiences. These traits usually includes the about the emotion, adventures, curiosity, imagination, creativity. Then comes the consciousness. This trait actually refers to the tendency toward your self-discipline, being organized, being dutiful. Then comes the extroversion. In extroversion, the people who are usually score high on extroversions are more characterized by the you can say high energy, positive emotions. They are very talkative and they are very assertive, etc. Then comes the agreeableness. These are the person which are very compassionate, very cooperative, very kind, very helping for the others. On the other hand, the people who score low on the agreeableness are tends to be very rude or very uncooperative. Then come the neuroticism, which we call the emotional stability, that it is actually the you can say show your emotional stability. The people who are high in the neuroticism is can be characteristics by you can say can be characterized by the tendency to experience more stress as compared to the people who score less in the neuroticism. Inshallah, in the next lecture, we are going to talk about the social learning theory, that how our nurture actually play an important role in determining our personality. In trait theory, and in psychodynamic theory, we talked about the nature of the personality. Now we will come toward the nurture part of the personality, that how actually nurture helps us to shape our personality. Thank you so much, class, for coming and listening. मैम जी मैम कार्डिनल जो आपने पढ़ाया ट्रेड, उसमें जैसे कि अब हम एग्जांपल ले लें कि मैं कहती हूँ कि मैं बहुत शाय पर्सन हूँ, तो ये कार्डिनल ट्रेड में आएगा? नहीं, कार्डिनल ट्रेट ये नहीं है। कार्डिनल ट्रेट में आपके पास ऐसी ट्रेट्स होते हैं, देखो आप शाय का मतलब है कि आपकी सारी की सारी जिंदगी आप सारे के सारे आपके बेस करती है, आपका पूरा लाइफ गोल ये है कि आपने जिंदगी में कभी किसी से नहीं मिलना। दैट इज जस्ट वन पार्ट। जब हम बात करते हैं ना कार्डिनल ट्रेट की, कार्डिनल ट्रेट आर एक्चुअली द वेरी रेयर ट्रेट, ये हर किसी में नहीं है। अगर आप शाय हैं या फॉर एग्जांपल मैं अगर बहुत शाय हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कार्डिनल ट्रेट है। कार्डिनल ट्रेट बहुत रेयर होता है, लेकिन ये समटाइम्स क्या होता है कि आपकी एक पर्सनालिटी जो है वो एक ट्रेट आपकी सारी पर्सनालिटी को करता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द मदर टेरेसा। आप मदर टेरेसा की बात करते हैं, अब हमें पता है मदर टेरेसा ये ईदी की बात करते हैं, उनकी सारी लाइफ किस पे बेस करती है? एक ही ट्रेट पे बेस करती है, दैट इज द ऑल्ट्रिज्म, दैट इज सेल्फलेसनेस। उन्होंने अपनी सेल्फ को पीछे रख के उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों के लिए काम किया, उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। तो ये है कार्डिनल ट्रेट। अगर आपका कोई एक सिंगल ट्रेट है जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत हद तक डोमिनेट कर रहा है कि लोग आपको उस वर्ड से जान रहे, फिर वो आपका कार्डिनल ट्रेट है, वरना वो आपका कार्डिनल ट्रेट नहीं है, और ये बहुत रेयर होता है। ओके मैम। और मैम जो आपने सेकेंडरी ट्रेड पढ़ाया, जिसमें आपने बोला कि हम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं उसमें, जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, जैसे KFC जाते हैं, वहां पे हम कहेंगे कि हमें यहाँ का बर्गर पसंद है, लेकिन मैकडोनल्ड जाके हम कहते हैं हमें यहाँ की इसकी कौन पसंद है। तो ये दोनों उसमें आती है सेकेंडरी में? ये आपके एटीट्यूड हो सकते हैं, ये आपके एटीट्यूड हो सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, लेकिन आप देखो फॉर एग्जांपल हम एक बात कर लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग।
लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग। एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा सोशल है, बड़ा टॉकेटिव है, आपको उसको देख के नहीं लगता कि वो पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम हुई, लेकिन क्या होता है कि जब भी कभी उसे पब्लिक स्पीकिंग के लिए कहा जाता है तो वो नर्वस होना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, हालांकि वो बहुत आप भी कह सकते हैं बहुत टॉकेटिव है, बहुत सोशल है, लेकिन जब उसे पब्लिक स्पीकिंग का कहा जाता है तब वो परेशान हो जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी ट्रेट है कि बाकी सारे काम वो बहुत अच्छे से करे, लेकिन वो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या आता है कि वो पसंद नहीं करता कि वो पब्लिकली बात करे। वो अपने इन ग्रुप में बहुत अच्छा है, वो अपने आउट ग्रुप में बहुत अच्छा है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग ये मोटिवेशनल काम के लिए वो प्रॉपर नहीं है। तो ये भी एग्जांपल हो सकती है सेकेंडरी ट्रेट की। क्लियर? यस मैम। जी आयशा, क्लियर बेटा? नो मैम, आवाज कट गई थी, आप प्लीज दोबारा बता दें। अच्छा देखो, जब हम सेकेंडरी ट्रेट की बात करें, लेट्स टेक एग्जांपल, एक फ्रेंडली पर्सन है। अब वो क्या है कि जब भी कभी कोई, वो बहुत फ्रेंडली है, हर किसी के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन देयर इज अ सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे वो जो चीज उसको अच्छी नहीं लगती वहां पे वो रिएक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत फ्रेंडली पर्सन है, लेकिन कभी ना कोई उसको टिकल करता है। अब जब उसको टिकलिंग स्टार्ट करने लगता है तो वो क्या था, वो गुस्से में आ जाता है। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार ये इतना अच्छा बंदा, ये गुस्से में क्यों आ रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल कार्डिनल वो सेकेंडरी ट्रेट। फिर अगर आप एक बात करते हैं कि लेट्स सपोज एक पर्सन है जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, हर काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, बहुत सोशल है, टॉकटिव है, क्वाइट नहीं है, शाय नहीं है, लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल, लेकिन हम उसको कहते हैं भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए, हम कहते हैं भी ऑडिटोरियम में जाके, आइडियाज लैब में जाके आपने क्या करना है, आपने स्पीच करनी है। वो ठग परेशान हो जाता है और आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, इसको तो ये चीज मसला ही नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको क्या होता है वो चीज मसला करना शुरू कर देते हैं। तो दीज आर द सेकेंडरी ट्रेट कि आपकी नॉर्मल पर्सनालिटी से हट के आप कोई ऐसा काम करें, लेकिन वो काम जो है वो हर वक्त आप नहीं करें, बल्कि आपकी वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में वो हो रही है। और जो आपने एग्जांपल दी थी मैकडोनल्ड वाली और केएफसी की भी, वो भी एक तरह की हो सकती है, दैट इज नॉट अ कंप्लीट सेकेंडरी ट्रेट, लेकिन आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन है जी जी, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, वो हम बाद में suggest करते हैं। आप अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फिर आप उसको बताएं। नहीं मैम, लेक्चर बड़ा क्लियर है। जी क्लास, एवरीबॉडी इज क्लियर? ओके, आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ द फ्री बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट। अब आप लोग की नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये टेस्ट करना है, एंड इंशाल्लाह आई विल पोस्ट वन मोर लेक्चर ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, दैट हाउ एक्चुअली नर्चर हेल्प अस टू शेप आवर पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच क्लास फॉर कमिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाँ मैम मैम जाइएगा ना। मैम